تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیچھے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ بھی عطا کیا. اللہ سے دعا یہی ہے کہ جن لوگوں نے عبادتیں کی، تراویحاں پڑھی، اللہ سب کی قبول فرمائے، ہم گناہگاروں کو بھی قبول فرمائے. اور یہ ماہ شوال یہ وہ مہینہ ہے جس کی خوشی جس کے چاند دیکھنے کی خوشی ہر مسلمان کو ہوتی ہے، ہر انسان کو ہوتی ہے. اور اللہ نے یہ مہینہ ہمیں عطا کیا، اس پر بڑا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے. جتنا اللہ کا شکر ادا کریں گے اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں اس میں اضافہ کروں گا. لئن شکرتم لازیدنکم. تم میری نعمتوں کا اگر شکر ادا کرو گے تو اس میں اضافہ کروں گا. اگر ناشکری کی ولئن شکرتم ان عذابی لشدید، اور اگر ناشکری کی تو میں نعمتوں کو کم نہیں کروں گا. آپ کے نصیب میں جو رزق لکھا ہے، آپ کی جو عمر لکھی گئی ہے، اس میں کمی نہیں ہوگی. ہاں کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے عمر کم ہوتی ہے، لیکن آپ کو ناشکری کرتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کی عمر میں کمی نہیں ہوتی، آپ کے رزق روزگار میں، کاروبار میں کمی نہیں ہوتی. بلکہ ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اور اگر یاد رکھو تم اگر ناشکری کرتے ہو تو ان عذابی لشدید ہے، میں نے عذاب شدید بھی تیار کر کے رکھا ہے ناشکروں کے لیے. یعنی ہر نعمت کے اندر اللہ کے جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اس حال میں خوش رہنا ہے، اس حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اور اللہ کا شکر یہ کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو حیات زندگی عطا کی، صحت زندگی عطا کی، صحت والی زندگی عطا کی. ہم نے رمضان المبارک کو بھی پایا، شوال کے چاند کو بھی دیکھا، عید الفطر کو بھی بڑے خوشیاں کے ساتھ منایا. اور آج پہلا جمعہ شوال المکرم کا پہلا جمعہ کے لیے مسجد کے اندر حاضر بھی ہوئے ہیں. تو اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے. اللہ نے جو زندگی دی ہے، یہ زندگی بڑی مختصر زندگی ہے. یہ زندگی رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر گزارنی ہے. رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. ان کی اطاعت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پہ چل کے، ان کی شریعت کو اپنا کر، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا کر جو زندگی گزاری جاتی ہے وہ زندگی کامیاب زندگی ہوتی ہے. میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو اپنا کر، رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مان کر، ان کے طریقے کو مان کر کے چلنا، وہ زندگی، اصل زندگی وہی ہے. اگر ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے، ترک کر کے، ہم اللہ کے احکام کو چھوڑ کر کے، رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو چھوڑ کر کے، ان کے سنتوں کو چھوڑ کر کے اگر دنیا کے اندر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ہم کامیاب نہیں ہوتے. بظاہر مجھے اور آپ کو لگتا ہے شاید میں نے گاڑی بنگلہ خرید کر کے، میرے بنگلے بنا کر کے شاید دنیا میں کامیاب ہو گیا. نہیں میرے عزیز، آپ کامیاب تو اس دنیا کے اندر آپ کو اپنی کامیابی نظر آتی ہے. آپ کو لوگ دیکھ کر کے یہ کہتے ہیں یہ سیٹھ صاحب بڑا کامیاب ہے زندگی کے اندر، یہ سیٹھ صاحب کے پاس بڑی کوٹھی ہے، یہ سیٹھ صاحب کے پاس بڑی گاڑی ہے. لیکن میرے عزیز نہیں، تیری شہرت، یہ سب کچھ خاک ہو جائے گی، یہ زندگی چھوٹ جائے گی، یہ زندگی چھوڑ کے چلا جانا ہے. اور یہ وہ زندگی ہے جو دار الفنا زندگی ہے، جو آپ نے ہر ایک سے سنا، ہر ایک سے پڑھا کہ یہ زندگی آپ نے چھوڑ جانی ہے. اس زندگی میں آپ کو کسی نے نہیں رہنا ہے. آج کل ہمارے پاس سے کتنے ہمارے عزیز چلے جا رہے ہیں، ہمارے ہاتھوں میں جنازے اٹھائے جا رہے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے کفن دے کر، ہم اپنے ہاتھوں سے اسے دفن کر کے کچھ ٹائم کے لیے عبرت کرتے ہیں اور پھر غافل ہو جاتے ہیں جیسے ہمیں اس دنیا سے اتنا لگاؤ ہو چکا ہے کہ شاید ہم نے اس دنیا کو کبھی چھوڑنا نہیں ہے. لیکن نہیں میرے عزیز، اس دنیا کو ایک دن چھوڑ کے چلا جانا ہے. یہ دنیا بے وفائی کر جائے گی، یہ دنیا اتنی بے وفا ہے. اگر اس دنیا کے اندر کسی کو بے وفا مانا جائے تو اپنی زندگی بے وفا ہے، وہ اپنی زندگی بے وفا ہے. زندگی اس وقت آپ سے بے وفائی کرے گی جب آپ کو پتہ بھی نہ چلے گا، جب آپ اس کے توقع کے اندر بھی نہیں ہوں گے، جب آپ کو امید بھی نہیں ہوگی کہ آپ کو زندگی چھوڑنے والی ہے. دنیا کے اندر اگر کوئی انسان کسی سے بے وفائی کرنا چاہتا ہے، اسے چھوڑنا چاہتا ہے، تو کسی انسان کو اس کے آثار پتہ چلتے ہیں، وہ اس کے ساتھ بات کرنا چھوڑ دیتا ہے. اور رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے
बात करना छोड़ देता है और उसे मालूम होता है कि शायद ये मेरे साथ छोड़ने वाला है, ये मेरे साथ बेवफाई करने वाला है, तो वो भी पीछे हट जाता है। लेकिन ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर ज़िंदगी है, ये उस वक्त बेवफाई करेगी जब आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके जिस्म से रूह निकल जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके जिस्म से रूह निकल जाएगी। और जब रूह निकल जाएगी आपका जिस्म किसी काम का नहीं रहेगा, वो 4 आदमियों का मोहताज हो जाएगा, 4 कंधों का मोहताज हो जाएगा, और आप 4 आदमियों के बगैर आप कब्रिस्तान तक चल के नहीं जा सकते, आप अपने कब्र में नहीं उतर सकते, आप 4 आदमियों के मोहताज हो जाते हैं। ज़िंदगी इतनी बेवफा है, ज़िंदगी इतनी मुख्तसर है, और वो ज़िंदगी दारुल बका वाली ज़िंदगी जो कभी ख़त्म नहीं होगी, वो ज़िंदगी गुजारने के लिए इस ज़िंदगी के अंदर इंसान ने तैयारी करना है। हाँ, रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो, उनसे फ़ायदा उठाओ। उनमें से एक ये है कि ज़िंदगी को मौत से पहले उससे फ़ायदा उठा लें। ज़िंदगी मुख्तसर सी ज़िंदगी है, इसके अंदर रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा, अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम को मानते हुए, जैसे रमज़ानुल मुबारक आया, हम सब ने दिल जान जिगर से हमने उसको अपनाया और माह रमज़ान के रोज़े रखे, तरावियाँ पढ़ी, इबादतें की। इसी तरीके से हर वक्त अल्लाह के अहकाम को अपना करके ज़िंदगी गुजारेंगे, हम कामयाब ज़िंदगी गुजारेंगे। और अगर उसको छोड़कर हम ज़िंदगी गुजारते हैं, हमारी ज़िंदगी दुनिया के अंदर बज़ाहिर हम कामयाब नज़र आते होंगे, लेकिन आखिरत की जो ज़िंदगी है वो हमारी कामयाब नहीं होगी। वो हमारी जो इस ज़िंदगी के अंदर जो हमने गफलत के अंदर, गुनाहों के अंदर अल्लाह बचाए गुजारी होगी, वहाँ उसका हिसाब देना होगा। वहाँ पूछ होगी कि मैंने जवानी अता की थी, जो मैंने जवानी दी थी, जो मेरे माल और दौलत दिया था, ये सब कुछ कहाँ खर्च करके आए हैं। और अगर हमारे वहाँ हम लाजवाब हो चुके होंगे, अगर हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा तो हम रुसवा हो जाएंगे। और रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रसूल कौनैन हम फ़ख्र करते हैं, हम एक बहुत बड़ी नेमत जो अल्लाह ने अता हमें की, वो रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से पैदा किया। उस उम्मत से पैदा किया जिस उम्मत के बारे में कुरान पाक ने ऐलान फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम ये बेहतरीन उम्मत है, ये सबसे आला उम्मत है, ये सबसे अफजल उम्मत है। हाँ, मूसा नबी अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया अल्लाह की बारगाह में, या अल्लाह, मैं अपनी किताब तौरात के अंदर एक ऐसी उम्मत का तज़किरा पढ़ रहा हूँ जो इस दुनिया में सबसे आखिर में आएगी और जन्नत में सबसे पहले दाखिल होगी। या अल्लाह, उस उम्मत का नबी मुझे बना दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मूसा, उस उम्मत के नबी के लिए तो ये सारी दुनिया सजी है, ये अर्श कुर्सी, ये ज़मीन और आसमां, ये फर्श, ये सब कुछ रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सजी है, ये उस उम्मत के नबी के लिए सजी है। अगर उस उम्मत के नबी को इस दुनिया के अंदर न लाना होता, ए मूसा, मैं तुझे भी पैदा न करता, मैं अपनी रबूबियत को भी जाहिर न करता, अगरचे मुझे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में न लाने होते। और उसके बाद हर पैगंबर ने ये इल्तिजा की, ये दुआ की कि मुझे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से पैदा किया जाए, लेकिन किसी की दुआ कबूल नहीं हुई। हज़रत ईसा अलैहि नबी की दुआ जो कबूल हुई, वो आसमान पर उठाए गए और उसके बाद वो सारे क़यामत के करीब वापस आएंगे, लेकिन नबी बन के नहीं आएंगे, वो तो उम्मत रसूल बनकर आएंगे, क्योंकि उनकी दुआ कबूल हुई थी। और मैंने और आपने न दुआएं की, न इल्तिजा की, न कुछ मांगा। अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से हमें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से पैदा कर दिया, और हमने न इल्तिजा की, न अब कभी दुआएं मांगी, न इल्तिजाएं की। और अल्लाह का करम यह हुआ कि हमें रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से पैदा कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है, हर शय के ऊपर कादिर था। मुझे चाहता किसी और उम्मत से पैदा कर सकता था। हाँ, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक 1,23,000 कमोपेश पैगंबर आए, और उनमें से किसी एक उम्मत से पैदा कर सकता था। लेकिन अल्लाह का बड़ा एहसान कि मुझे कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास वाली उम्मत से पैदा किया। वो उम्मत जो तमाम उम्मतों से अफजल, वो उम्मत जो तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम जिस उम्मत में होने के लिए इल्तिजाएं और दुआएं कर रहे हैं, वो उम्मत अल्लाह ने हमें, उस उम्मत से अल्लाह ने हमें पैदा किया। अल्लाह का इस पर शुक्र अदा करना चाहिए। और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे अपने आका की इत्तिबा और उनकी एक सुन्नत को अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करनी चाहिए, और अपनी ज़िंदगी को रसूल नाज़िनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को बनाएंगे तो हमारी ज़िंदगी, दुनियावी ज़िंदगी भी कामयाब होगी, और आखिरती ज़िंदगी जो अबदी ज़िंदगी है, जो कभी ख़त्म नहीं होगी। ये पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ये पूरी दुनिया के साजो सामान, ये
दुनिया के पूरे बिल्डिंगें, ये सारे मालो कोठी सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन वो आखिरत वाली जिंदगी खत्म नहीं होगी। फरमाया कि अगर पूरी दुनिया के अंदर राई के दाने भर दिया जाए और उसे पूरा फुल कर दिया जाए, और 1 साल के बाद एक परिंदा आकर के उसमें से एक दाना उठा कर ले जाए, और इस दुनिया के अंदर जमीन और आसमान तक कितने राई के दाने होंगे, और अगर एक दाना 1 साल के बाद उठाया जाए तो भी वो राई के दाने खत्म हो सकते हैं, लेकिन आखिरत की जिंदगी खत्म नहीं हो सकती। आखिरत की जिंदगी इतनी तवील जिंदगी है क्योंकि वहाँ मौत को खुद मौत आ चुकी होती है, क्योंकि यहाँ दुनिया के अंदर जो कोई सख्ती के अंदर आ जाता है, किसी बीमारी के अंदर मुब्तला हो जाता है, किसी को कोई तंगदस्ती होती है तो कहता है या अल्लाह मौत ही दे दे, अब मुझे इससे बेहतर है कि मुझे मौत ही आ जाए, क्योंकि यहाँ मौत आ जाती है। वहाँ तो इंसान मौत मांगेगा लेकिन मौत को मौत आ चुकी होगी। खुद हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम क़यामत के बाद उन्हें मौत आ जाएगी, वो भी मर जाएंगे, वहाँ खुद मौत को मौत आ चुकी होगी। वहाँ इंसान अगर किसी बीमारी के अंदर, अल्लाह बचाए गुनाह की वजह से किसी बीमारी के अंदर, वहाँ की बीमारी कैंसर, टीबी या शुगर बीमारी नहीं है, वहाँ की बीमारी आग है, बिच्छू हैं, सांप हैं, अगर अल्लाह बचाए उस बीमारी के अंदर मुब्तला हो गए, वहाँ अगर मौत भी मांगेंगे तो मौत नहीं आएगी, और वो अबद जिंदगी जो हमारी उस अज़ाब के अंदर ही गुजारनी पड़ जाए तो अल्लाह बचाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे सारे गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमारे रसूल नाज़रीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की तौफीक अता फरमाए, उनके तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमाए, उनको उनके एक एक सुन्नत को अपनी ज़िंदगी के अंदर लाने की तौफीक नसीब फरमाए। इस गफलत वाली हमारी जो जिंदगियां गुजर रही हैं, अल्लाह हमें इस गफलत से नजात अता फरमाए, हमारी हिफाजत फरमाए, हमारे जान की, माल की, इज्जत की, आबरू की हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला मैंने जो कहा, आपने जो सुना, इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे अजीज़ों, हम वाज़ व नसीहत, तकरीरें बहुत सुनते हैं, लेकिन अगर हमारे पास किसी चीज़ का मसला है, वो मसला है अमल का। हमारे बीच से अमल ख़त्म हो चुका है। हम वाज़ व नसीहत बहुत सारे मुबल्लिगों को सुनते हैं, बहुत सारे वाज़ खानों को सुनते हैं, लेकिन अगर कुछ मसला है हमारी ज़िंदगी के अंदर, वो मसला सिर्फ इतना है कि हमारी ज़िंदगियों से अमल निकल चुका है। और आप हमेशा जिस भी मुबल्लिग को सुनते होंगे, उसका आखिरी जुमला होगा कि अल्लाह तबारक व तआला सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। ये इसलिए कि हमारे बीच से अमल की तौफीक छिन चुकी है, हमारे बीच अमल नहीं रहा है। तो मेरी भी यही दुआ रहेगी कि अल्लाह तबारक व तआला मैंने जो कहा इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। इसके अंदर जो गलतियाँ कोताहियाँ हुई हैं, आप सबको गवाह बना के पढ़ता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह तआला रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व असअलुहु तौबा। रब तबारक व तआला मेरा कहना सुनना, आपका सुनना कबूल फरमाए, अमल की तौफीक अता फरमाए। मौला करीम ये जुम्मा हम सब के लिए अल्लाह आखिरत में नजात का ज़रिया बनाए, दुनिया में हिदायत का ज़रिया बनाए। हमारा यहाँ जमा होना कबूल फरमाए, मौला आना कबूल फरमाए, मौला हम सब की आना कबूल फरमा। या अल्लाह हम जितने भी यहाँ जमा हुए, जितने भी जो भी जायज़ तमन्ना मुरादें लेकर बैठे हैं, सब की अर्जियों पे दस्तखत फरमा। या अल्लाह तमाम की हाजत को रवा फरमा, मकरूज़ों की कर्ज की अदायगी अता फरमा, हाजत रवाओं की हाजत को पूरा फरमा। मौला करीम बीमारों को शिफा फरमा। या अल्लाह हम सब के जो यहाँ जमा हुए, जितने भी मरहूमीन गुजर गए हैं, सब की मग़फ़िरत फरमा, सबको आला इल्लियीन में जगह अता फरमा। या अल्लाह सब की कब्रों को बुकाई नूर से मुनव्वर फरमा। या अल्लाह इस फैज़ान जुमा से हमें माल फरमा, फैज़ान नमाज से माला माल फरमा, फैज़ान कुरान से माला माल फरमा, हमें सच्चा और पक्का नमाजी बना। या अल्लाह सच्चा और पक्का नमाजी बना, ज़मीनों में सजदों की तड़प अता फरमा, क़ुलूब में नमाज का शौक़ अता फरमा। मौला हमें कुरान की तिलावत की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।